Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 9 September 2021. I am teaching you chapter number 9, living safely. So now today we will start with the third question. What is a tourniquet when it is used? So what is this? It is a cotton band which is tied above the wound to stop bleeding. Is it clear? And when we use this, it is used in excess bleeding or it is tied just above the snake bite. अगर सांप ने काट लिया है तो जहाँ काटा है उससे जस्ट अबव वहाँ पे टाइटली इसे बांध दिया जाता है, सो डैट द poison does not spread, because we know that the blood circulate in all parts of the body, so that the poison is not spread in the body. So it is tourniquet. So we tied above the snake bite. ठीक है, जहाँ पे स्नेक ने काटा है उस जगह से थोड़ा सा ऊपर इसे टाइटली बांध दिया जाता है. ठीक है, so note down the answer or you can take a screenshot also. Now fourth question, question number 4. Why should we wear? Question 4. Why should we wear? Why should we wear rubber slippers? Rubber slippers Why should we wear rubber slippers while working? Why should we wear rubber slippers while working with electrical appliances? Note down the answer. Because we wear rubber slipper at the time we are working with electrical appliances. Reason is that they are insulators. They don't allow electricity to pass through them. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते. That is the reason they save our body. We should wear rubber. We should wear rubber slippers while working with electrical appliances, because they are the insulators. insulator to
protect our body from the electrical appliances. Okay, so we should wear rubber slippers. Is it clear? We should wear rubber slippers while working with electrical appliances because they are the insulators to protect our body from the electrical appliances. You can take a screenshot. So after completing chapter number 9, today student we will start chapter number 10. Communicable diseases. So first of all, student, let's understand what are communicable diseases. The diseases which can be spread from a infected person to a healthy person, that type of diseases are known as communicable diseases. For example, influenza, measles, malaria. So all these are communicable diseases. Beta, the diseases which can be spread when from a infected person with the diseases which can transfer from an infected person to healthy person by physical contact. ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके हम कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये डिजीज हमें भी स्प्रेड हो जाती है. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ डिजीजेस आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, and what is non-communicable diseases? The disease which are not spread from an infected person to a healthy person, that are known as non-communicable diseases. Okay, communicable diseases infected person से ट्रांसफर हो जाती हैं हेल्दी पर्सन में. इफ वी कम इन कॉन्टेक्ट विद ए infected person, that is communicable diseases like influenza, malaria, measles, चिकन पॉक्स. सो ये सब डिजीज है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं बेटा, दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. जैसे मैंने फूड वाले चैप्टर में बहुत सी डिजीजेस के बारे में आप लोग को डिस्कस किया था. डेफिशिएंसी डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, वी आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक विटामिन ए. लैक ऑफ विटामिन ए causes night blindness. Lack of vitamin B causes very lack of vitamin D causes ricket. If there is no iodine in the salt, then the person is suffering from goiter. Obesity means if you are taking too much fat, then you are suffering obesity. So ये diseases infected person से healthy person में ट्रांसफर नहीं होती, तो इनको क्या बोला हमने? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है. नाउ हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर स्प्रेड. ओके, सो दीज डिजीजेस, ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, दीज आर
spread by the they are caused by they are caused by various kinds of germs. ठीक है, germs are everywhere present in our surrounding. ठीक है, कॉम्युनिकल डिजीजेज किससे कास्ट होती है बेटा? जर्म से. ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ जर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स. हमारे पूरे सराउंडिंग में जर्म्स हैं. जर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं जर्म्स को. क्यों? बिकॉज दीज आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी आर अनेबल टू सी देम विद आवर नेकेड आइज. हम अपनी नेकेड आइज से इनको देख ही नहीं सकते क्योंकि ये जर्म्स बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है, सो दे आर कास्ड बाय जर्म्स. और अभी मैंने बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीजेज ट्रांसफर हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इफ द हेल्दी पर्सन कम इन टच विद द इन्फेक्टेड पर्सन. सो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. तो जर्म्स क्या है? अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं तो भी इन्फेक्टेड पर्सन से जर्म्स हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंटर कर जाते हैं. एक तो ये मेथड है यूजिंग आर्टिकल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. जैसे बेटा आप लोग ने देखा होगा कफ कोल्ड है, फीवर है, जो वायरल फीवर होता है घर में किसी को हो जाए तो सबको होने लगता है क्योंकि हम एक दूसरे का सामान यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, आप एक ही टॉवल यूज़ कर रहे हो, आप सेम सोप यूज़ कर रहे हो घर में, जो और जिस मेंबर जो इन्फेक्टेड है वो ही आप यूज़ कर लिए, उसके संग आपने खाना खा लिया. सो इन दिस मैनर इट इज ट्रांसफर फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर और थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज. ठीक है, थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से भी जो जर्म्स आ जाते हैं और थ्रो इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस हाउ दीज आर स्प्रेड विद द डिजीज स्प्रेड बाय ए मॉस्किटो. तो मॉस्किटो से जो डिजीज स्प्रेड हुई वो हम लोग डिस्कस करेंगे मलेरिया. ओके, मलेरिया स्प्रेड बाय ए मॉस्किटो. सी नाउ, so when the mosquito, see how the malaria is spread. Malaria is spread by the bite of a which mosquito? Name of the mosquito is Anopheles mosquito. So name of the mosquito is Anopheles mosquito. This was the name of the mosquito which spread the malaria. Now what happens student when the see, so when what happens, how the malaria is spread by a mosquito? When a mosquito bite a person who is suffering from the malaria. जब मॉस्किटो ऐसे पर्सन को काटता है बेटा जो मलेरिया से सफ़र कर रहा है तो ब्लड के थ्रू जर्म्स भी उसके बॉडी में इंटर हो जाते हैं. ठीक है, उन जर्म्स enter the body of the mosquito and these germs grow in the mosquito body within 7 and 10 days and this period is known as incubation period. ठीक है, जब एक मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, जब उसको ये बाइट करता है तो ब्लड के संग जर्म्स उसकी बॉडी में आ जाते हैं और जर्म्स को मॉस्किटो की बॉडी में ग्रो करने में बेटा 7-10 डेज लगते हैं और इस पीरियड को क्या हम लोग कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड. और अब जब मलेरिया के जर्म्स उस मॉस्किटो में आ गए बेटा तो व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट ए हेल्थी पर्सन देन दैट पर्सन इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम अ मलेरिया. In this manner mosquitoes spread the malaria. ठीक है, नेक्स्ट है डिजीज स्प्रेड बाय ए हाउस फ्लाइज. देखो हाउस फ्लाइज, देखो अब हाउस फ्लाइज की बात करते हैं. ठीक है, अब जब हम हाउस फ्लाइज की बात करते हैं तो हाउस फ्लाइज बाइट नहीं करती जैसे मच्छर काटते हैं.
ठीक है। तो हाउस फ्लाइज बाइट नहीं करती, तो अब ये कैसे डिजीज स्प्रेड करती है बेटा, ये जो गार्बेज है, ठीक है, सो जर्म्स housefly do not bite but are carrier of a germs such as bacteria, virus, protozoa and worms। इस टाइप के जर्म्स को कैरी करती है। नाउ हाउ द मॉस्किटो, हाउ द हाउसफ्लाई कैरी द जर्म्स, जो गार्बेज है, जो गंदी प्लेसेस हैं, और एनिमल और ह्यूमन फेसेस जो पॉटी करते हैं, एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी, तो ये ऐसे प्लेसेस पे अंडे देती हैं, ठीक है। सो दे गिव एग इन सच अ डर्टी प्लेसेस, ठीक है। तो जब ये इन गंदगी में जब ये बैठती हैं बेटा, तो जर्म्स इनके बॉडी में क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। ये जो आपकी हाउस फ्लाइज होती है, दे कैनॉट बाइट लाइक ए मॉस्किटो बट दे ले एग ऑन द गार्बेज, दे सिट ऑन वुमन फेसेस एंड अदर डर्टी प्लेसेस। तो जर्म क्या होते हैं, इनके बॉडी के पार्ट्स में, इनके लेग्स में, इनके पंख जो होते हैं उन सब में क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और जब ये एंड व्हेन दे सिट ऑन द फूड आइटम, तो ये जर्म्स किस में चले जाते हैं, फूड में। इसीलिए बेटा जब भी आप लोग ध्यान दो, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि खाने पे मक्खियाँ ना बैठें। आपने किचन में देखा होगा, आपकी मम्मी फूड बनाती है तो ईटेबल आइटम सबको कवर करके रखती है, ड्रिंकिंग वाटर को भी कवर करके रखती है, क्योंकि अगर ये मॉस्किटोस आपके फूड पे बैठ जाएंगे तो उनके बॉडी पे जो जर्म स्टिक किए होंगे वो सारे किस पे चले जाएंगे, फूड में। और जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखते नहीं है। आप तो सोचोगे बिल्कुल फूड क्या है, हेल्दी फूड है, बट इफ द हाउसफ्लाई सिट ऑन द फूड देन द फूड बिकम कंटेमिनेटेड। फूड क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। और ऐसे फूड को अगर आप खा लेते हो तो जर्म्स क्या होंगे, आपके बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे। एंड सम ऑफ द डेंजर डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज आर कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया, ठीक है। कॉलरा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है और डायसेंट्रीज होती हैं। टाइफाइड, अगर आपने पानी कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप पी रहे हो तो आप टाइफाइड आपको हो जाएगा, इसमें भी बहुत हाई फीवर आता है, ठीक है। और उसके बाद डायरिया, ठीक है। तो ये तीनों बीमारियां किससे होती हैं, हाउस फ्लाइज स्प्रेड करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायसेंट्रीज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डायसेंट्रीज, ओके। इन द केस ऑफ ए डायसेंट्री जब होता है तो वी शुड गो टू द डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन। अगर डायसेंट्री बहुत ज़्यादा होने लगती है बेटा, अगर डायसेंट्री बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें जो हमारे बॉडी में वाटर की बहुत कमी होने लगती है, क्योंकि जब हम बार बार, आप डायसेंट्री हो रही है मतलब आप पॉटी जा रहे हो बार बार, तो ऐसे में क्या हो जाता है, फ्लूइड्स की हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर ये और जब बहुत ज़्यादा होने लगती है तो बेटा आप क्या डायरिया में डायसेंट्री रिजल्ट इन डायरिया विद ब्लड। बहुत लोगों को पॉटी में ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। वो पॉटी करने जाते हैं, अगर उनके डायसेंट्री कंट्रोल नहीं हो रही है, बॉडी से बहुत सा ज़्यादा फ्लूइड जो है बाहर हो चुका है, तो फिर लास्ट में क्या होने लगता है, अगर वो पॉटी जाते हैं और उनकी डायसेंट्री अभी भी कंट्रोल में नहीं हो रही है तो उसमें भी उनको क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो इसके लिए सबसे बेटर मेथड है कि बॉडी में जो लिक्विड्स, फ्लूइड्स की इतनी कमी हो गई हो तो ऐसे पेशेंट को बेटा हमें ORS सॉल्यूशन देनी चाहिए, ठीक है। ORS सॉल्यूशन मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और इट इज गिवन एट ए रेगुलर इंटरवल टू द पेशेंट, ओके। नेक्स्ट है डिजीजेस काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ ORS घोल, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। 6 टीस्पून ऑफ शुगर, हाफ टीस्पून ऑफ साल्ट एंड 1 लीटर बॉइल्ड वाटर। इसे आप मिक्स कर लो, मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन दिस वाटर, ठीक है। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स किसको बोला है, शुगर के लिए बोला है, सॉल्ट के लिए बोला है। और इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायसेंट्री देन देयर इज लॉट्स ऑफ फ्लूइड, इज लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, सो
उसकी रिकवरी के लिए हमें ऐसे पेशेंट को क्या बेटा ORS घोल देते रहना है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब डिजीज काज भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि ये इतने छोटे हैं, दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी आर अनएबल टू सी देम, हम इन्हें देख ही नहीं सकते, ठीक है। दे आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी आर अनएबल टू सी देम, सो दैट इज द रीजन, so that is the reason we say what are microorganisms. Microorganisms are the germs and we cannot see them with the naked eyes. और माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपके क्या क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है और वायरसेस है, ये क्या है आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। एंड दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर में भी है ये, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, सो ये in everywhere they are present, okay। so disease caused by a virus, flu, common cold और measles, ठीक है। इसमें आपको फीवर आएगा, ठीक है, कॉमन कोल्ड है तो आपको खांसी आती है, ठीक है। और डिजीज काज बाय बैक्टीरिया, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस है। कॉलरा में अभी ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्कस किया था, इसमें वोमिटिंग और डायसेंट्रीज होती है, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज काज बाय प्रोटोजुआ, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और डायसेंट्री, ठीक है। मलेरिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है, स्लीपिंग सिकनेस है और डायसेंट्री भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और डिजीज काज बाय फंजाई है, एथलीट फुट, ठीक है, पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, और रिंगवर्म, ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, ठीक है। सो एथलीट फुट इसलिए इसका नाम रखा गया इस बीमारी का, क्योंकि इसमें पैर जैसे हाथी के पैर होते हैं ना बहुत बड़े बड़े फुट, उस तरह पैर बिल्कुल फूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो डिजीज काज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, तो अब इन्फेक्टेड फूड और वाटर से कौन कौन डिजीजेस आपको हो रही है, डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड है, अगर कंटेमिनेटेड वाटर आप पीते हो, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हो, तो फूड और वाटर से कौन बीमारी होती है, कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है बेटा, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, लीवर प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। कॉलरा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, टाइफाइड भी डिस्कस कर लिया, डायरिया भी डिस्कस कर लिया। जॉन्डिस में क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए, ये इन्फेक्शन किसका इन्फेक्शन होता है, लीवर का, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। और ये कैसे होता है, व्हेन वी ईट ए कंटेमिनेटेड फूड और बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, अगर हमने कंटेमिनेटेड फूड खाया है या हम डर्टी ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं तो इससे हमें ये डिसीजेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर एंड गार्बेज, वी सो ये जो फ्लाइज है, कॉकरोच, ये भी अनवांटेड विजिटर हैं जो आपके घर में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉकरोच को आप देखोगे, ये वाटर होता है आपका सीवर्स वाले वाटर और गार्बेज गंदे में होते हैं, ठीक है। और ये अगर घर में एंटर करते हैं तो व्हेन ए हेल्दी पर्सन कंज्यूम दिस फूड, ठीक है, सो अनकवर्ड फूड पे अगर ये फ्लाइज हैं, ठीक है, अनकवर्ड फूड पे अगर ये जब बैठते हैं तो इनके बॉडी से जर्म्स किस में चले जाते हैं, फूड में चले जाते हैं, और ऐसा फूड अगर आप लोग ईट कर लेते हो तो आप लोग यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। दैट इज द रीजन वी शुड ऑलवेज कवर द फूड विच वी ड्रिंक। और वाटर मैक्सिमम, देखो बीमारियां आजकल वाटर से, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से लोगों को बहुत बीमारी हो रही है, इसलिए लोग अब मैक्सिमम घरों में आप लोग देखोगे बेटा लोग वाटर फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर वाले वाटर को पी रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ
communicable so how we can stop the prevention of a communicable diseases, ठीक है। so कैसे हम इसे रोक सकते हैं, अवॉइड बीइंग इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हमें दूर रहना है। और फॉर एग्जांपल इफ समवन इज इन्फेक्टेड इन देयर हाउस, तो हमें उसके आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं, जैसे टॉवल्स है, हेयर कॉम्स है, क्लोथ है। सो वी डोंट यूज द आर्टिकल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। और एयरबोर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड इफ ए पर्सन suffering from the disease cover his mouth when he cough or sneeze and avoid spitting public places, ठीक है। तो देखो जैसे इस समय कोरोना का चल रहा है तो सारे लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके बगल में आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई इन्फेक्टेड है पर्सन और वो बार बार छींक रहा है या इधर उधर सराउंडिंग से स्पिटिंग कर रहा है, थूक रहा है, तो इससे भी क्या होते हैं, जर्म्स स्प्रेड होते हैं, इससे भी क्या होते हैं, जर्म्स स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें इग्नोर करनी है। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन्स, अगर आप अपनी सराउंडिंग क्लीन्स रखोगे, डोंट अलाउ स्टेगनेंट वाटर बिकॉज दीज आर द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटोज, ठीक है। तो डोंट अलाउ स्टेगनेंट वाटर टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, बिकॉज दिस इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ए मॉस्किटो। इफ वी शुड पुट मॉस्किटो नेट्स, और सोते समय हमें मॉस्किटो नेट्स भी लगाने चाहिए। और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी ऑल आउट होता है उसको भी लगाते हैं, जिससे मॉस्किटो इंटर ना करे, ठीक है, मॉस्किटो हमें काटे ना। थर्ड है कीप द गार्बेज कवर सो द हाउस फ्लाइज आर नॉट एबल टू स्प्रेड जर्म्स, ठीक है। जो घर का जो गार्बेज होता है बेटा, उसको हमें कैसे रखना चाहिए, कवर रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर हाउस फ्लाइज कॉकरोच बैठेंगे तो वो पूरे घर में क्या फैलाएंगे, जर्म्स फैलाएंगे, ओके। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मेंटेन पर्सनल हाइजीन मीन्स डेली यू हैव टू ब्रश योर टीथ ऑल द टाइम बिफोर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द फूड यू वॉश योर हैंड विद द सोप, और आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम यू वॉश योर हैंड विद द सोप, ओके। comb after taking a bath, comb your hairs, cut your hairs also, and wear clean clothes, so in this manner, and trim your nails regularly. So by this method you can take care of your personal hygiene. Another method is a vaccination. Vaccination is another way of protecting ourselves. देखो जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना आपका हेल्थ कार्ड है, तो आप अपने हेल्थ कार्ड को देखना अकॉर्डिंग टू एज, आपके पैदा होने से भी 10 साल तक की उम्र में तक देखो आपको बहुत से वैक्सीनेशंस लगे होंगे जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। जैसे अभी कोविड, अभी तो छोटे बच्चों को तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखो बड़े लोगों को अभी सबको वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोविड से बचाने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि हमें अपना हेल्थ कार्ड दिखाइए, आपको भी बहुत सी वैक्सीनेशंस लगी होंगी, ठीक है। आप उसमें पढ़ लीजिएगा कौन कौन वैक्सीनेशन आपकी लगी है। ऑनलाइन क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टू हैव ए हेल्दी बॉडी एक्सरसाइजेस एंड रेस्ट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करने हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम हमेशा फ्रेश रहते हैं। और डेली आप एक्सरसाइज करोगे बेटा तो आपकी डाइट भी अच्छी होगी, और हमें हेल्दी फूड ईट करना चाहिए। एज वी नो दैट न्यूट्रिएंट्स, वी आर गेटिंग दिस न्यूट्रिएंट बाय ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड, दैट इज ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमें कैसी डाइट लेनी है, वी शुड ईट ए बैलेंस्ड, वी शुड ईट ए बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। हमें कैसी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। और वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो इफ वी टेक केयर आवरसेल्फ, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वी विल स्टे हेल्दी, ठीक है। और वैक्सीनेशन में क्या होता है बेटा, जैसे अभी वैक्सीनेशन हो रही है कोविड-19 के, सबको वैक्सीनेशन, तो हमारी बॉडी उस जर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। इसलिए आज अपनी मम्मी लोग से अपना हेल्थ कार्ड लेना और देखना कि कौन कौन सी इंजेक्शन तुम्हें लगे हैं, ठीक है।
और वैक्सीनेशन में क्या होता है, जब उस जर्म्स को हमारी बॉडी में डाला जाता है तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच हेल्प द बॉडी टू रेजिस्ट एनी डिजीज। देयर आर वैक्सीनेशन अवेलेबल फॉर डिजीजेस लाइक, छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम उम्र के सारे बच्चों को आप लोग देखते होंगे, आपने भी पोलियो की ड्रॉप्स ली होगी, मिजल्स की, टाइफाइड की, कॉलरा की, तो ये सब इंजेक्शन आपको भी बचपन में लगे होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर।